Hello students, how are you all? I hope you all are fine and you all are enjoying and learning from these videos. In this pandemic situation, you all are learning from your home and we are doing at our level best for your career. So myself Rajesh from Elite School, we are learning 6th unit of science life processes. In this unit, we have already completed types of nutrition and different life processes ऑफ ह्यूमंस बॉडी. हमने अलग अलग जो लाइफ प्रोसेसेस है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि डाइजेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन है. वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस सेशंस. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. Particularly transportation in a plants, we have discussed transportation of water. Now we are going to discuss transportation of food and different elements in plants. We have also discussed transportation in humans and we have seen the function of heart in detail. We have also seen the blood pressure, how we can measure the blood pressure, what is the blood pressure. Also we seen maintenance of platelets, lymph, different kinds of things we have already discussed. So today guys we are going to learn transportation in a plant's detail. So transport of water we already learned in a xylem tissue. We already learned about the xylem. Now we are going to learn about the xylem in a detail. In xylem tissue, vessels and tracheids of the roots, stem and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. पहले नंबर की बात, what is the requirement of water? Can we survive without water? We cannot survive without water, just like us, plants are also cannot survive without water. आपने काफ़ी बार सुना होगा कि भाई इस बार बारिश नहीं हुई है तो इतना क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा. क्रॉप यानी कि प्लांट्स ही है, तो वाटर नहीं मिलेगा तो प्लांट्स ग्रो कैसे कर पाएंगे? बिकॉज इन द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स दे रिक्वायर वाटर. क्या चाहिए उनको? पानी चाहिए, वाटर चाहिए. अलॉन्ग विथ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होगा तो ही वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स, दे आर मेकिंग देयर फूड बाय देयर ओन. वी आर हेट्रोट्रोप्स, वी आर डिपेंड्स ऑन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, बट प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर फूड बाय देयर ओन. वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए उनको क्या चाहिए? Their basic requirements are carbon dioxide, sunlight and water. Carbon dioxide they are absorbing from the soil by their roots, while not carbon dioxide, water they are absorbing from the soil, and carbon dioxide they are absorbing directly from the atmosphere, from the leaves and different parts of the plants. But most of the carbon dioxide is absorbed from the leaves. The particular hole is there which is known as the stomata. So now we are going to learn how plants are grow, how they are exchanging energy, how they are absorbing water, how they are sending the different food materials to different parts of the plant. At the roots, cells in a contact with the soil actively take up ions. जो रूट में सेल्स है वो डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में है, तो वो क्या करते हैं? सॉइल के जो आयन्स हैं, मिनरल्स है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं. दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयन्स बिटवीन द रूट एंड सॉइल. इस एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से होता क्या है? तो कि जो आयन्स है वो एब्जॉर्ब होंगे. कहाँ से एब्जॉर्ब होंगे? तो कि रूट से एब्जॉर्ब होंगे. और कहाँ पर जाएंगे? तो कि भाई जो रूट से, सॉइल में से रूट्स तक जाएंगे. तो उस चीज़ की वजह से एक कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आता है, क्योंकि पहले रूट्स के पास आयन नहीं थे, तो तब किसके पास आयन्स थे? तो कि तब सॉइल के पास आयन्स थे. अब उसके बाद आयन एक्सचेंज हुए यानी कि उसने रूट्स ने एब्जॉर्ब किए,
ताकि जो सॉइल के आयन है वो डिक्रीज हो गए और रूट्स के बढ़ गए, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ। तो ड्यू टू डिफरेंस इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन रूट एंड द सॉइल, वाटर therefore moves into root from the soil to eliminate this difference। तो इसकी वजह से होता क्या है, जो वाटर है वो क्या करता है, सॉइल से मूव करता है। क्या करता है, मूव करता है। कहाँ जाता है, तो कि रूट में जाता है। टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, नलीफाई करने के लिए वाटर क्या करता है। देखिए वाटर का नेचर ऐसा है कि वो फ्लो करेगा हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड, बट हियर दिस डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होता है, क्योंकि वाटर इज ए फ्लोइंग फ्रॉम लोअर एल्टीट्यूड टू हायर एल्टीट्यूड। ये थोड़ी टिपिकल चीज़ है, बट वाई दिस हैपन्स, ड्यू टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दिस थिंग इज हैपन्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। This means that there is a steady movement of water into root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upwards। एक वाटर का कॉलम क्रिएट हो जाता है जिसे जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। However, this pressure by itself unlikely to be enough to move water the heights that we commonly see in plants। Plants use their another strategy to move water in the xylem upwards to the highest points of the plant body। So, provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in a leaf। तो यहाँ पर होता क्या है, ट्रांसपीरेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। ट्रांसपीरेशन, किसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जैसे ही वाटर जाइलम के जरिए ऊपर पहुंचेगा, धीरे धीरे लीव्स तक पहुंचेगा। लीव्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एटमोसफियर। लीव्स के ऊपर क्या पड़ता है, सनलाइट पड़ती है और डायरेक्ट एटमोसफियर के कॉन्टेक्ट में है। तो वहाँ से स्टोमेटा, जो पोर्स है, वहाँ से जो वाटर है लीव्स का, जिसने एब्जॉर्ब किया है सॉइल से बाय रूट्स, वो क्या होगा, वहाँ पर इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा मीन्स दैट लिक्विड, दैट वाटर विल कन्वर्ट इनटू द वेपर। वो जैसे ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ पर डी एफिशिएंसी ऑफ वाटर क्रिएट होगा, यानी कि वाटर की कमी होगी। तो ये वाटर की जो कमी है उसकी वजह से सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन यानी कि खींचना, क्या करना, वाटर को खींचना। तो सक्शन क्रिएट होने की वजह से ऑटोमेटिकली वाटर नीचे से क्या आएगा, ऊपर आएगा। जैसे आपने काफ़ी बार देखा होगा कि पेट्रोल की टंकी से हमारा व्हीकल जो होता है, बाइक या एक्टिवा या वॉटेवर, हमको जब भी उसमें से पेट्रोल निकालना है तो हम कार्ब्यूरेटर की पाइपलाइन निकाल के भी निकाल सकते हैं, या फिर टंकी में कोई पाइप ऐड कर दे, फिर उस पेट्रोल को सक करें हमारे मुंह से। जैसे ही पेट्रोल आने लगे उसके बाद तुरंत वहाँ से मुंह अपना हटा लें, तो उस तरीके से भी पेट्रोल हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है, एक बार ये क्रिएट होनी चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, सक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से भी ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्टोमेटा, फ्रॉम द लीफ, द plants can absorb water from the soil. In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of roots. The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as a transpiration. The loss of water in the form of vapor from the aerial means which are in contact with the atmosphere, parts of the plant is known as transpiration. You can see the image of transpiration, how the water is evaporating from the plants, and due to evaporation they are creating water suction tendency, and due to this they are absorbing water from the roots. Transpiration helps in absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves. It also helps in temperature regulation
The effect of pressure, root pressure in the transport of water is a more important at night. During the day when stomata are open, the transpiration pool becomes the major driving force in movement of water in the xylem. Can you imagine guys, जब ड्यूरिंग डे जब दिन होता है तब तो ये सनलाइट की वजह से इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है. बट व्हाट अबाउट द नाइट? नाइट में किस तरीके से ये प्रोसेस होगा? तो नाइट में सक्शन वाला प्रोसेस रिड्यूस हो जाएगा. क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इतना वाटर है वो इवेपोरेट नहीं होता होगा. इतना वाटर है वो इवेपोरेट नहीं होता होगा इसकी वजह से. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, transport of food and other substances. So far, we have discussed the transport of water and minerals in the plants. Now let us consider how the products of metabolic processes. Means metabolic process में क्या मिलता है? Digested food. Particularly photosynthesis are moved from leaves where they are formed to other parts of the plant. Earlier, when I was teaching you modes of nutrition, particularly autotrophic mode of nutrition, in that I told you guys, leaves are the kitchen of plants. Plants are preparing food in leaves. From the leaves, also leaves are storage of energy. जैसे ही ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो उसमें क्या बनेगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होके उसमें बनेगा फूड. तो वो जो फूड है वो फूड कहाँ जाएगा? तो क्या किस तरीके से अलग अलग प्लांट्स में मूव करेगा? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस पार्ट इन अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ soluble products of photosynthesis is called translocation. Kindly tick mark this sentence guys. This transport of soluble products means food and other substances are soluble, and transportation of food and other substances is called translocation. Translocation. What is the translocation? Translocation is the transportation process of food and other substances in a plants, and it occurs in the part of vascular tissue known as phloem. So kindly also tick mark this sentence guys. Phloems are the responsible for a transportation of food and other elements. For the water transportation, xylem is responsible, while the food and other transportation phloem is important and responsible. Besides the product of photosynthesis, the phloem transports amino acid and other substances. Amino acids are the digestive product of the protein. प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? अमीनो एसिड मिलेगा. और अमीनो एसिड किससे ट्रांसपोर्ट होता है? अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट होता है फूड की जितने भी डाइजेस्टेड फूड है वो किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो क्या फ्लोएम से. दिस सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू ग्रोविंग ऑर्गन्स. देखिए सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी. अलग अलग चीज़ों के लिए क्या चाहिए हमें? वी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन. हमको क्या चाहिए? तो क्या न्यूट्रिशन चाहिए हमको. तो ये न्यूट्रिशन हमको कहाँ से मिलेगा? वी आर गेटिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद जो हमें चीज़ें मिलती है, किचन में जो खाना बनता है, किचन में नहीं हम डाइनिंग रूम में खाते हैं, तो डाइनिंग रूम तक पहुँचना तो चाहिए, अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुँचना तो चाहिए. तो उसके लिए ये फ्लोएम है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट गाइज? तो ये जो अलग अलग स्टोरेज के ऑर्गन्स हैं, रूट्स है, ये खाना जो फूड है वो तो लीव्स में बना है. तो जो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट है, स्टेम है, रूट्स है, फ्रूट्स है, सीड्स है, जितने भी ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं उन तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए. तो उस चीज़ को पहुंचाने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन. The translocation of food and other substances takes place in a tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction.
तो ये जो ट्रांसलोकेशन है फूड का, ये सीव ट्यूब्स में होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, वैसे ही प्लांट में क्या होते हैं, सीव ट्यूब्स होते हैं। जो कंपेनियन सेल है, विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। Unlike transport in a xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in a phloem is achieved by utilizing energy. तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को, काइंडली फोकस ऑन दिस एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम का यूज़ होता है, जाइलम टिश्यू, लेकिन वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड इवेपोरेशन बोथ टेक्निक्स आर यूज्ड। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन दो टेक्निक से होगा, एक तो इवेपोरेशन टेक्निक से और दूसरी वाली जो हमने पहले ही देखी, तो क्या एक्सचेंज ऑफ आयन मीन्स ड्यू टू डिफरेंस इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। लेकिन यहाँ पर फूड या अदर सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर्ड एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। जैसे कोई बस या टू व्हीलर फोर व्हीलर जब चलता है, ड्राइव करता है, निकलता है, तब उसको चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्यूल चाहिए। तो इसके लिए भी क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, मीन्स एनर्जी चाहिए। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो जो सुक्रोज है, सुक्रोज यानी इट इज़ द फॉर्म ऑफ शुगर, इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम, यानी कि सुक्रोज फ्लोएम में ट्रांसफर करता है एनर्जी देने के लिए। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू causing water to move into it. This pressure moves the material in the phloem to tissue which have less pressure. तो ये इस चीज़ की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चीज़ यहाँ पर कीवर्ड है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र हो रही हो चीज़, तो वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर प्लेज एन की रोल। ऑस्मोटिक प्रेशर दो मीडियम के बीच का प्रेशर है, उसको डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको। तो एक दो मीडियम के बीच का प्रेशर है, तो उसमें होता क्या है, कोई भी चीज़ फ्लो कब करती है ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। तो ये जब सुक्रोज फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसफ़र होता है तो वो क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। तो हाई प्रेशर से लेस प्रेशर तक क्या होगा, कोई भी चीज़ मटेरियल फूड सब्सटेंस ट्रांसफ़र होगा। This allows to phloem to the move material along to the plant's needs. According to plant's needs, ये मटेरियल क्या करता है, अलग अलग जगह फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्प्रिंग, sugar stored in a root or stem tissue would be transported to the buds which need energy to grow. Mostly in a spring season, जो बर्ड्स होते हैं यानी कि फूल की कलियाँ, वो क्या होती है, खिलती है। तो एट दैट टाइम दे रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। तो तब जब भी ज़रूरत हो तब क्या होता है, इस तरीके से वहाँ पर फूड के पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं और वो जो कलियाँ है वो ग्रो करती है। सो दिस वॉज दी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इन प्लांट्स के प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये पार्ट हमने देखा। हियर द टू क्वेश्चंस आर IMP, दो क्वेश्चन यहाँ पर IMP है। व्हाट इज़ द जाइलम एंड व्हाट इज़ द फ्लोएम। Xylem is the tissue which is responsible for a water movement, water transportation in a plants, while the phloem is a tissue which is responsible or helpful for a transportation of food and other elements. I hope ये आपको समझ में आया होगा guys. Thank you students.